all that I have is also a privilege and I should be grateful for all these things. You will notice कि कितनी सारी चीजें आपके साथ ऐसी हुई हैं जो कि आपके फेवर में थी and which made you happy in that moment. Hey everyone, welcome back to my channel. I am Shreyashi. आज हम लोग बात कर रहे हैं gratitude के बारे में. अभी gratitude क्या होता है? Gratitude basically is an expression for what a person receives, be it tangible or intangible. Gratitude ना basically एक इंसान को कोई भी जो उनके अच्छे moments होते हैं उसको relish करने में help करता है. It makes them believe in the positives. एक mindset का shift है from what we lack to what we have. Usually क्या होता है, हमारा mind ना उन चीज़ों पे focus करता है जो हमारे पास नहीं होता है. Like आज ही जब मैं ये shoot करने जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक better camera होता तो अच्छा होता, मेरे पास ऐसे mic होता तो अच्छा होता. You know, these kind of things keep popping up in your head. But कुछ लोगों के लिए जिनके पास एक कैमरा नहीं है शूट करने के लिए या अच्छा फोन नहीं है, उनके लिए वो चीजें जो मेरे पास है उनके लिए वो चीजें एस्पिरेशनल है. बट मेरे लिए, बिकॉज आई हैव दीज थिंग्स एंड आई हैव ऑलरेडी यूज्ड देम फॉर सम टाइम, नाउ आई हैव स्टार्टेड क्रेविंग फॉर मोर. सो दिस इज वेयर ग्रेटिट्यूड हेल्प्स मी इन बीइंग ग्राउंडेड. Research has said that the simple act of expressing gratitude releases dopamine and serotonin in our brains, which are the neurotransmitters which are associated with pleasure and happiness. हमारा mind इससे gradually rewire हो जाता है and it gets inclined towards positive thinking and हमारी जो anxiety होती है उसको relieve करने में help करता है. Now let's talk about the benefits of practicing gratitude. Gratitude practice करने से सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है, like I said, आपका mental health improve होता है. So when you practice gratitude, हमारा जो thought process है वो shift होता है towards the positive side of things and इसकी वजह से हम अच्छी चीजें ज्यादा सोचने लगते हैं एंड उसकी वजह से फिर हमारा ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है. सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इज एनहांस्ड रिलेशनशिप्स. आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है. सो व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड यू ऑफन टेंड टू राइट अबाउट पीपल हु आर क्लोज टू यू. फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर. आप उनके बारे में लिखते हो लाइक व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड बिकॉज यू राइटिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट देम, आपका जो माइंड होता है वो उसका जो फोकस है वो शिफ्ट होता है इस चीज पे. आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें अच्छी चीजें क्या है. थर्ड वन इज बूस्टेड प्रोडक्टिविटी. आपने अपने ऑफिसेज में नोट किया होगा कि where the bosses or leaders are more grateful towards their team, that team is often more productive in their work. Now let us talk about how you can express gratitude for someone. सबसे पहली चीज, you can write a thank you note for them. अगर आपको for example in a particular day अगर आपके साथ किसी ने अच्छे से behave किया या आपको छोटी सी कुछ help कर दी, अगर किसी इंसान ने आपको अच्छा feel कराया, you can write a thank you note for them and tell them how grateful you are because they made you feel a certain way. So you can make it a point कि हर महीने में आप एक thank you note लिखोगे उस इंसान को जिसने आपकी लाइफ सबसे ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट की in that previous month. Also sometimes you can write a thank you note to yourself as well. The second way to express gratitude is to thank them mentally. आप उनको mentally thank you बोलो and whenever you are just about to sleep or you have just woken up, take some time to close your eyes and just mentally thank that person for whatever gesture they showed you जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी positive impact आया. The third one and again very crucial one is keep a gratitude journal. Gratitude journal में आप daily you can write down things that have made you happy in that day or things that have made a positive impact in your life in that day. जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज हो, इसमें आप छोटी से छोटी चीज जैसे कि आपकी मॉम ने आपका फेवरेट लंच बनाया and it made you happy, you can write that as well in your gratitude journal. You can also write things like आपने अगर workout किया है so how that made you feel and how accomplished you are feeling about the day. कोई भी छोटी से छोटी चीज आप उस gratitude journal में लिख सकते हो. The next thing that you can do is हर वीक के एंड में एक बार 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप बैठ जाओ and think about 3 or 5 things or give it any number, that number of things that made you happy in that particular week. So इससे क्या होता है, आप पूरे वीक के बारे में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हो एंड पूरी वीक में बहुत सारी अच्छी चीजें आपके साथ हुई होंगी विच यू टेंड टू फॉरगेट एंड वीकेंड में शायद आप अभी इस टाइम पे सैड हो रहे होगे कि नहीं मेरे आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा. नाउ द लास्ट वन इज मेडिटेट. सो यू कैन जस्ट सिट डाउन, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. यूजुअली व्हाट हैपेंस विद अस इज व्हेनेवर वी आर सिटिंग राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट either our future or our past कि past में ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं
होना चाहिए था, और वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो वी आर वेरी रेयरली इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो दैट इज वाई मेडिटेशन हेल्प्स यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. जब आपका माइंड स्टिल होता है, पीसफुल होता है, तो सारी चीजें जो हैं आप रिकलेक्ट कर पाते हो, एंड यू आर एबल टू बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपन विद यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई talk about myself. So today I had the privilege of waking up little late than usual because आज छुट्टी थी. So that is something that I can be grateful about. And also if I talk about the current moment, इस time पे अभी मैं ये बैठ के shoot कर पा रही हूँ ये video. This is making me happy. So I can be grateful about this as well, because not everyone has the privilege to quietly sit in a room alone and have all the things that they need to shoot a video and then finally shoot a video. So yeah, these are small things that हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें लगता है कि ये तो बेसिक मिनिमम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूंगी तो ही मैं अप्रिशिएट कर पाऊंगी कि ओके, ऑल दैट आई हैव इज ऑल्सो अ प्रिविलेज एंड आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स. इफ फॉर इंस्टेंस राइट नाउ you are feeling sad or depressed or not feeling very motivated in your life, and if you start practicing gratitude within few days or week, you'll start noticing the shift in your mindset. आपका जो mind है वो खुद ही आपको बताने लग जाएगा कि okay, these good things happen with you and why you should focus on the positive side of things. जब आप लिखने बैठते हो ना एक blank page and pen लेके, तो ही आपका दिमाग वो focus, वो चीजें ढूंढना start करता है कि आपने क्या अच्छा experience किया पूरे दिन में. बट अगर आप वो बैठोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपका माइंड कभी भी पॉजिटिव चीजों की तरफ नहीं जाएगा. बिकॉज आवर माइंड यूजुअली टेंड्स टू फोकस ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, एंड हमें अपने माइंड को खींच के ना वापस से पॉजिटिव लाना पड़ता है. एंड वो लाने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल तरीका है. So let me know if you are planning to practice gratitude. And yes, on that note, I will end this one here. Please make sure to hit that subscribe button, and I'll see you again in my next one. Till then, bye.